जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, Said here. जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास. Can you hear my voice, Vidya? Assalamu alaikum class. Can you hear my voice? जी, good morning, Zishan. जी, it's clear. Very good. How are you all, class? ठीक ठाक है, आप लोग खैरियत से हैं? Okay, just wait. PPT is uploading.
Welcome class. मोहम्मद रजा, आवाज आ रही है आपको? Is my voice clear? आवाज इश्यू? ओके, क्लियर है मेरा बशर का आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है. Anyhow, let's start today's lecture. Just the PP is uploading. Just wait for a while. जी, मैंने आपको जो थी वो इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग दी थी करने के लिए, वो कहाँ तक पहुँची है आप लोगों की? अभी गूगल क्लासरूम पे जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों की जो है वो कहाँ तक पहुँची है. ओके जी, अभी हम लोग ये पढ़ते हैं जी, some more useful and important letters to the editor about bomb blast in Pakistan. Write a letter to the editor of the newspaper about bomb blast in Pakistan. The editor, the down, Lahore. ठीक है, subject bomb blast in Pakistan, sir. Subject लिखेंगे bomb blast in Pakistan, sir. Kindly publish these lines against the terrorist activities of bomb blast in Pakistan in your newspaper. Yeah, I want to enlighten the burning issue with the reference of your newspaper. ये भी लिख सकते हैं. I want to draw your kind attention towards burning issue of the terrorism of the bomb blast in Pakistan in your newspaper. I want to enlighten the public opinion about bomb blast in our country. ठीक है, अब इसमें आप लोग स्टूडेंट सबसे पहले लेटर टू एडिटर में मैंने आपको बताया हुआ है कि वो बर्निंग इश्यूज जो हैं हमारी सोशल इश्यूज, सोशल बर्निंग इश्यूज जो हैं वही होते हैं. ठीक हो गया. ये हो गया आप लोगों का. जी, everybody is known that our country is grip of the terrorism. The recent bomb blasts have sent the entire country in a great grief and shock. The bomb blasts have become a routine matter in country. There are many factors behind the bomb blast. First of all, it seems the anti-Pakistan agencies seem to have an invisible hand in them. They are afraid of a stable or strong Pakistan. Of course, I think most of the countries are afraid of the stable and strong Pakistan. They are against the very existence of our country. They want to put the entire country to anarchy and in this way intend to weaken it. क्या करना चाहते हैं? इसे weaken करना चाहते हैं इस वजह से. ठीक है जी.
Secondly, there are anti-Pakistan and anti-Islam elements who want to shake the very foundation of Pakistan. They are against the very ideology of our country. They don't want to see Pakistan a stable and prosperous country. That is why they commit the cowardly act of bomb blast. Thirdly, our country is divided into many religious sects. The people of one sect are at war with the other sects. The sectarian clashes have taken the ugly form of the bomb blast. Bomb blast uses a great loss to the life and property of the life. The innocent men, women, and children are killed. The entire stream of life comes to a standstill. The bomb blast caused panic and horror in the country. The economic activity in the country is also arrested. I suggest the following steps to put at the end of the heinous crime. अच्छा होता क्या है कि एट द एंड आप लोगों ने सजेशन जरूर देनी है ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम अबीन ठीक है जी सजेशन एंड पे लाजमी देनी है आप लोगों ने सजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका लेटर टू द एडिटर का our line for suggestions should be made vigilant and they must keep an eye on the suspected people अल्लाह माफ करे suspected people जो है वो आजकल तो आपको पता है कौन suspected people किनको कंसीडर कर रहे हैं ठीक है जी अगला है द अरेस्टेड नेक्स्ट सजेशन क्या है द अरेस्टेड culprits कहते हैं गिरफ्तार जो मुजरिम होता है culprits should be given exemplary punishment and they must be hanged publicly exemplary punishment का क्या मतलब होगा क्लास exemplary punishment they must be hanged publicly the nation should make an end to all type of differences people must be united on one platform to fight a war against terrorism जी क्या मतलब है इसका क्लास एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इबरतनाक सजा ठीक है फॉर लर्निंग वेरी गुड शाबाश सही कहने हैं भाई आप लोग टेररिज्म और बॉम्ब ब्लास्ट के रिगार्डिंग जो है ये मुझे आप लोग समझते हैं कि शायद ये जो है ना मैं ऐसे ही आप लोगों को करवा रही होती हूँ लेकिन ऐसे नहीं करवा रही होती मैं आप लोगों को
ठीक है जी, बाकी भी कर दूंगी। अभी इसको पढ़े बैठ के जो नहीं समझ आती पूछूंगी इसे। जी स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के पेपर्स जो हैं कॉलेज तो जो एक्सटेंड हो गई हैं क्लासेस, आप लोगों को कोई रिसीव हुआ मैसेज कि कब तक एक्सटेंड हुई हैं आप लोगों की क्लासेस? और जो पेपर्स हैं यूएचएस ने अनाउंस कर दिया है कि पेपर जो हैं वो आप लोगों के इन टाइम ही होंगे। ठीक है, वो आप लोगों के इधर उधर नहीं होने कि आप लोग कहें कि हाँ जी हमारे जो है वो पेपर इधर उधर हो जाएंगे, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है जी, थर्ड ईयर का मैंने असाइनमेंट दी हुई थी करने के लिए, राइट अ लेटर इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग।
ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग जो है हैंडी टीम मुझे ओनली 9 हुई है, 28 वो जो है अभी साइन की थी, 8-10 को जो है वो मार्क करके वो वापस भेज दी गई हैं। जी, बाकी स्टूडेंट्स ने काम क्यों नहीं किया? ज़बलून आपने मुझे काम क्यों नहीं करके दिखाया? प्रणिका देवी आपने भी मुझे काम नहीं करके दिखाया हुआ, क्यों? बहुत अच्छी सी आपको जो है वो लिखनी आती है इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग, जो आप काम नहीं करके दिखाते मुझे। रिमशा शहजादी आपने भी मुझे काम नहीं करके दिखाया हुआ। तो ये इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग में आप लोगों को इसीलिए करवा रही हूँ कि देखें, अगर आप लोगों की इस तरह से पेपर शुरू हो जाते हैं तो आप मुझे बताएं क्या करेंगे आप लोग के पेपर शुरू होंगे तो। जब तक आप इस तरह से ऑनलाइन में आप लोगों को काम करवा रही हूँ, ऑनलाइन ही आप लोग भी जो है मैं मिस्टेक्स बताऊँगी। लेकिन अगर आप लोग जो हैं मुझे बताएं, मुनीबा तारिक आपने क्यों नहीं मुझे काम करके दिखाया हुआ? जी मुनीबा, क्या मसला था? आपने क्यों नहीं हैंड रिटन मुझे असाइनमेंट, मैंने गूगल असाइनमेंट आपको दी थी, क्यों नहीं आपने मुझे लिख के भेजी हुई? जी मुनीबा तारिक आपने भी क्यों नहीं सेंड की हुई मुझे? नेहा आपने भी मुझे नहीं भेजी हुई। ये इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स की आती है। इसी तरह से मैंने आपका पहले ये टेस्ट लेना है, उसके बाद लेटर टू एडिटर का टेस्ट लेना है, ठीक है? तो जब आप लोग नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों को आएगा क्या, मुझे वहाँ पे बताएं, फिर फेल होके बैठ जाएंगे, ना करें। फिर कहते हैं मैडम आप ऐसी बातें जो हैं वो मुँह से क्यों निकालते हैं? मुबीन अली आपकी असाइनमेंट कहाँ है? आपने क्यों नहीं मुझे सेंड की हुई अपनी असाइनमेंट? मुबीन, हैंड रिटन असाइनमेंट मुझे क्यों नहीं सेंड की है आपने गूगल क्लासरूम पे? मिशेल मारी आपके साथ क्या मसला था? आपने भी नहीं मुझे सेंड की हुई। जी मुबीन आपने क्यों नहीं सेंड की हुई मुझे अपनी जो है गूगल क्लासरूम पे? मीरा बरूज आपने भी नहीं मुझे सेंड की हुई। जी मीरा बरूज आपके साथ क्या मसला था? मरियम नायाब आपने भी नहीं मुझे सेंड की हुई। मारिया ताहिर आपने भी नहीं सेंड की हुई। कितनी बुरी बात है। इसका मतलब आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते इंग्लिश का, मैं आप लोगों को ना करवाया करूँ फिर? ये मुजीब हसीब कौन है? इससे भी नहीं सेंड की हुई मुझे। ये खान साहिब कौन है? खैर से मैंने कहा भी अब है कि ओरिजिनल अपने नाम नहीं रखा करें, मुझे क्या पता खान साहब कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये, उल्टे सीधे नाम रखे हुए होते हैं। हमारा कुमार आपने भी नहीं मुझे सेंड की हुई असाइनमेंट। बच्चों इस तरह से तो आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं होने वाली, आप लोग जो कर रहे हैं। आमना आपने भी नहीं सेंड की हुई मुझे। ये तो सब इस तरह कर रहे हैं आप लोग कि आप लोगों को सारा कुछ आता है। यू नीड नॉट वरी अबाउट प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश। अनीसा अकरम आपकी कहाँ पे असाइनमेंट? इन सब बच्चों का मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं टिक करती जा रही हूँ, इन सब की एब्सेंट ही लगेगी आज। आप लोग क्लासेस नहीं है ना? अरीज सलीम आपकी कहाँ पे है?
आतिका नज़ीर वैसे ये बहुत बोलती हैं कि हाँ जी ठीक है, मुझे तो सारा कुछ ही आता है, मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फायजा भी कुछ भी नहीं आता आपको ना। फातिमा ने भी लेक्चर देना छोड़ दिया, मैं असाइनमेंट क्या देनी है इससे असाइनमेंट। अफसा कदीर ने भी नहीं जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई। बेगम अजहर आपने क्यों नहीं काम सबमिट करवाया अभी तक? जी नीसा आपने क्यों नहीं करवाई हुई सबमिट? जी रिश्वा शाकिर, मैं आपको जो है गूगल क्लासरूम का भेज देती हूँ, लेकिन बेटा आप अगर नेम पे भी जाते हैं ना, अनीसा अकरम जी मैम लिखती जा रही हैं, तो काम क्यों नहीं मुझे करके दिखाया? मोहम्मद रजा आपकी असाइनमेंट कहाँ है? जी रेशमा शाकिर, ये जो मैंने सेंड किया है ये है गूगल क्लासरूम का इनविटेशन लिंक। जी मुझे जिन स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाई है ना, उन स्टूडेंट्स में जो है मैं बता देती हूँ, उन स्टूडेंट्स के नेम मुझे मिल गई है। आबिदा अकमल, पता नहीं कौन है, आबिदा अकमल की मिल गई है, कायनात नवाज की, मरियम नायाब की, मीरब अशरफ की भी मिल गई है, ठीक है। नबीला रियाज की मिल गई है, निमरा खालिद की मिल गई है, नूरिता अजहर की मिल गई है, परस्ती शमून की मिल गई है, रिंशा जावेद की मिल गई है मुझे, ठीक है। बाकी और किसी की भी नहीं मिली मुझे अभी तक। सायरा अली की भी नहीं मिली। तो ये बात शबीर ने भी खैर से नहीं भेजी हुई है। अपने बच्चों के साथ मसाइल क्या हैं, आप लोगों के लिए ही का है, आप लोग ही लिख के भेजेंगे मुझे, और आप लोग की जो है वो भेज ही नहीं रहे। बेटा पढ़ेंगे तो फिर है ना, आप लोग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाए, इसके बावजूद आप लोग ना मुझे काम करके दिखाएं तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, आबदा अकमल, आबदा परवीन है, ठीक हो गया, लेकिन मुझे काम तो बेटा करके दिखाए ना। सायरा अली आज की तारीख में कर देंगे, तो जो पहले मैंने डेट दी हुई थी उसमें क्यों नहीं किया आप लोगों ने, मुझे ये बताया। आप लोगों के काम फाइनली है। मेमो राइटिंग की इतनी अच्छी तैयारी करी है मेरे साथ, मैं उनको देती हूँ मेमो लिखने के लिए, वो इस पे भेज देते हैं, मैं ऑनलाइन उनको बताती हूँ कि आपने कैसा किया और कैसा नहीं किया।
उर्वा, आपको यानी कि एब्सेंट और प्रेजेंट से गर्ज है, आपको ये गर्ज नहीं है कि हम लोगों ने जो है वो करना है काम कि नहीं करना। मुझे तो ये हैरत हो रही है आप कि आपको एब्सेंट और प्रेजेंट से गर्ज है, आपको ये गर्ज नहीं है कि हम लोग जो है काम करके दिखाएं, मैडम हमें ऑनलाइन हमारी मिस्टेक्स बताएंगी। ये जो आप लोगों ने काम मुझे करके दिखाना है, मैंने ऑनलाइन आप लोगों को आपकी मिस्टेक्स बतानी है बेटा। आप लोग पता नहीं इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं। जिशान, आपने क्यों नहीं सबमिट करवाई मुझे पिता का असाइनमेंट जो है अपनी? बेटा इस तरह तो काम ही ना चलेगा। आप लोग, मैंने आप लोगों को आगे प्रपोजिशंस भी करवानी है, उसकी भी असाइनमेंट सेम है। आप लोग आराम से बैठेंगे, आप लोगों ने कोई असाइनमेंट करनी नहीं है। जब तक करके नहीं दिखाएंगे मैं आप लोगों को किस तरह से आगे से जो है वो काम करवाऊंगी आप लोगों को। पेपर सर पे आगे आप लोग मुझे बताएं किस तरह से पेपर सर पे आगे आप लोगों को आता जाता क्या है इंग्लिश का, मुझे ये बता दें आप लोग। इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग आती है 20 मार्क्स की, वो आपको लिखनी नहीं आती। इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की रिटर्न। कॉलेज पता नहीं कब खुलने के, अचानक डेट ही चाहती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? और पेपर्स पता है होनी है आप लोगों की। आप लोगों को डर लगने लगना है। मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ कि मुझे ये सबमिट करवाएं बेटा, जिनके जीरो भी लग गए हैं। आप लोगों का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमारी एब्सेंट लग रही है, हम लोग का जीरो लग रहा है। आप लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि मैडम ने जो हमें काम दिया है हमारी भलाई के लिए दिया है, हमारे पेपर्स के लिए दिया है, हमने पास होना है। जो मैडम ने हमें गूगल क्लासरूम पे काम दिया वो हम लोग करके दिखाएं मैडम को काम। मैं ऑनलाइन ही आप लोगों को यहीं पर आप लोगों को मिस्टेक्स बताऊंगी कि आप लोगों की क्या सही लिखा और क्या गलत लिखा आप लोगों ने। लेकिन आप लोग इस चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रहे। आप मुझे बताएं, आपकी डेट शीट आ जाती है, महीने के बाद पेपर है, 20 दिन के बाद पेपर है, क्या करेंगे आप लोग? इट्स गोइंग टू बी अप्रैल और आपके पेपर होने हैं। अगलों ने MBBS के पेपर ले लिए, आप लोग क्या चीज़ है?
मैंने आप लोगों की असाइनमेंट चेक करनी है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना, तब तक आप मुझे अपनी असाइनमेंट सेंड कर दें। नेक्स्ट जो आप लोगों का लेक्चर होगा ना बच्चों, उसमें मैं आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स बताऊंगी। आप लोगों की असाइनमेंट चेक करके मैं आप लोगों की हैंड इन करूँगी, मार्क्स करके इंशाल्लाह। फाइनल ईयर को भी मैंने इसी तरह से ऑनलाइन सारा कुछ बताया है, उन्होंने मुझे सेंड किया, लेकिन मुझे हैंड रिटन चाहिए आप लोगों की चीज़ें, ठीक है। हैंड रिटन करके अपलोड करें और उसके बाद जो है मुझे दें। चलिए जी, अब आप लोग जो है इसको पढ़ें, इसको लेटर टू एडिटर को। जो नहीं समझ आता पूछें मुझसे। नेक्स्ट लेक्चर कब है? नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो इंशाल्लाह थर्सडे फ्राइडे का, ट्यूसडे हो गई है, कल वेडनेसडे या थर्सडे और फ्राइडे को होगा आप लोगों का लेक्चर। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी आपकी मिस्टेक्स क्या हैं जिन्होंने भेज दी है मुझे। बेटा मुझे आप लोगों की सॉफ्ट पे नहीं चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पे आपने नाम बनाई हुई हो, बल्कि आप लोगों ने हैंड रिटन मुझे इंसिडेंट रिपोर्ट लिख के वो अपलोड करनी है। कैम स्कैन से उसकी तस्वीर उतारें और गूगल पे जाके मुझे सेंड करें। चलिए, हम जो इस दफ़ा तो सेंड कर दी हैं, ठीक है, उन्होंने कर दी हैं, लेकिन नेक्स्ट जो दिन भी होगी लेटर टू एडिटर है, इंसिडेंट रिपोर्ट। अब तो चाहिए था पिछली दफ़ा इंसिडेंट रिपोर्ट में आप लोग मुझे बताते, सेंड करते सबके सब, तो मैं आप लोगों को सबके सब अब बता देती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको इंसिडेंट रिपोर्ट 2-3 दफ़ा लिख के दिखाएंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह लेटर टू एडिटर मुझे 2-3 दफ़ा लिख के दिखाएंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। हैंड रिटन लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी ना आप लोगों की। हैंड रिटन लिखेंगे नहीं तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? इट्स नॉट रियली टफ टास्क। कौन सा टफ टास्क है मोबीन? कुछ भी टफ नहीं है इसमें। सारी दुनिया मेरे साथ जो है वो सारी फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर हर एक स्टूडेंट जो है मुझे कर करके दिखा रही है। थर्ड ईयर ही जो है लेजीएस्ट क्लास बैठी हुई है। वर्ड पे अनीजा मेरी बात सुनो, वर्ड पे लिख के दिखाओगी? उधर यूएचएस में उन्होंने आपको ऑनलाइन देने हैं, कंप्यूटर देने हैं, सिस्टम देने हैं कि इस पे लिख के दिखाएं हमें? वर्ड पे अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलो, तैयबा को पता ही नहीं क्या लिख के सेंड करना है।
नहीं, मुझे सॉफ्ट में नहीं चाहिए नबीला रियाज, मुझे हैंड रिटन चाहिए आप लोगों की। और को किस बात पे हंसी आ रही है? ये आमना ऑनलाइन नहीं हुई? अजीब अजीब बातें करती हैं आप लोग तो। पढ़ना ही ना होता जिन लोगों ने, वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई आप लोगों को पता ही नहीं है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, हम लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना हम लोगों ने। वही 2-4 बच्चे क्लास में पढ़ने वाले, उन्होंने ही पढ़ना है बस। और आमना तो लगता है अभी भी सोई हुई है। जी काफी अर्से से भी ना, आपने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। लिखना भूल गए। और छोटे बच्चे हमारे घर आए ना, तो उनको मैंने पूछा, मैं कहा कौन सा स्कूल जाते हो? कहता पता नहीं मैं स्कूल जाता था, पता नहीं मैं कौन सी क्लास में हूँ। ठहरो मैं मम्मा से पूछ के आता हूँ जाके, मम्मा मैं मेरे स्कूल का नाम क्या? मम्मा मैं स्कूल जाता था ना। तो वही आप लोगों का हाल है कि मैडम हमने इतना अच्छा हो गया लिखा नहीं है, हम भूल गए कैसे लिखें। इन तैयबा इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग ही बेटा बस लिखनी है, फिलहाल लेटर कोई नहीं मैंने दिया। ये मुझे सारे बच्चे लिख के दिखाएंगे तो मैं अगला टास्क दूंगी ना आप लोगों को करने के लिए। आप लोग टेंशन में चले जाते हैं। आप लोग टेंशन लेते होते ना तो आप लोग मुझे जो है लिख के दिखाते ये सारा कुछ कि मैडम ने हमें काम दिया हुआ है, हम लोगों ने लिख के दिखाना है। हम लोग गूगल क्लासरूम पे जल्दी से असाइनमेंट भेजें, हमें मार्क्स बताएंगे, हमें हमारी मिस्टेक्स पता चलेंगी। आप लोग टेंशन में आ गए। ये क्लास 3rd ईयर जो है ना, ये बड़ा कहते हैं काम कोई करना नहीं है, टेंशन 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 में आ गए। हमें आप स्ट्रेस दे रही हैं, हमें टेंशन दे रही है। वो भाई पढ़ना कुछ है नहीं आप लोगों ने, टेंशन दे रही है, स्ट्रेस दे रही है टीचर आपको। में बच्चे लेजीएस्ट मोस्ट लेजीएस्ट क्लास ऑफ शालामार नर्सिंग कॉलेज। सब बच्चे मुझे फर्स्ट ईयर मुझे करके दिखा रही है, सेकंड ईयर मुझे करके दिखा रही है, फाइनल ईयर करके दिखा रही है, 3rd ईयर की असाइनमेंट्स नहीं करती। पता नहीं कहाँ से इतनी लेजी हो गई आप लोग। हाँ, और अभी बुला लेना कॉलेज तो फिर वो देखें क्या गप्पे शप्पे मारी जा रही है, ये कैफे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, बस पढ़ने का ना कहीं 3rd ईयर को। सिर्फ आज मैंने उन्हीं की प्रेजेंट मार्क किया जिन्होंने मुझे असाइनमेंट्स भेज दिए। असाइनमेंट्स भेजा करेंगे तो प्रेजेंट मार्क्स हुआ करेगी, बेशक आप लोग ना लिया करें लेक्चर। चलिए अनीसा देख लेते हैं कैसे एज सून एज पॉसिबल आप लोग भेजती हैं मुझे। अब थर्सडे को क्लास होनी है, सब बच्चों ने मुझे भेजी हुई हो। लास्ट चांस दे दी, आपको तो पता है हर दफ़ा ही आपको लास्ट चांस दे दी होती हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं मेरे पास, इसलिए तो मैं कह रही हूँ आप लोगों को बेटा प्रेजेंट बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो प्रेजेंट हैं बच्चे वो मुझे पता है, ठीक है। प्रेजेंट कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स मुझे भेजी थी, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं बस उनकी प्रेजेंट लगा दूंगी। इसलिए तो मैं आपको कह नहीं रही कि अटेंड योर रोल कॉल। जब आप मुझे भेज देंगे ना थर्सडे को, आपकी आज की भी प्रेजेंट लग जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, आज की मैं प्रेजेंट मार्क बिल्कुल नहीं कर सकती। जिस दिन आप मुझे असाइनमेंट भेजेंगे आपकी पिछली भी मार्क हो जाएगी बस। तो ये ऐसी प्रेजेंट प्रेजेंट लिख के फजूल टाइम ज़ाया ना करें। अरूज फातिमा कुर्तुलैन आपने असाइनमेंट भेज दी है हैं? जब भेजोगी ना और वो असाइनमेंट साइरा अली, तब मैं आपकी प्रेजेंट मार्क कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने बड़े इस तरह के स्टूडेंट देखे हुए हैं, आज ही काम कर देंगे कि आज काम हुआ और अगली दफ़ा लो दीदी भैया को आवाज़ ही नहीं जा रही है बोर्ड सुनने। जुएरिया को ये पता मैंने प्रेजेंट बोलना है, ये नहीं पता कि मैंने असाइनमेंट की भी कोई बात करनी है कि नहीं करनी। नो मुबीन अली, नो, एब्सेंट।
जब नेक्स्ट लेक्चर तक करेंगे तो आज की प्रेजेंट मार्क कर दूंगी। बात ही खत्म हो गई, अब दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं है। और बात नाउ दफा लिखो, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, फिर भी नहीं लिखनी।